کرتے ہیں, ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, واٹس ایپ کیجئے, واچ پارٹی کیجئے, گروپس میں ڈالیے تاکہ سارا جلال خدا کے نام کو دے سکے. ہمارے درمیان بہت ہی ہمارے نہایت ہی محترم اور خدا کے خادم بشپ داؤد آئزک موجود ہیں. ہم ان کو تالیوں سے زور آئیں, سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور خدا کے خادم کو زوردار تالیوں سے خدا کے خادم کئی سالوں سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور بڑے زور و شور سے خدا کے نام کو دعوت دے رہے ہیں. کتنے لوگ تیار ہیں خدا کے نام کے لیے؟ Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So خدا کے خادم کو اور خدا کے کلام کو ہم نے ویلکم کیا. آپ سب تشریف رکھیں اور خدا کے خادم سے کلام سنیں. مسیح یسوع کے قدوس اور برحق نام میں آپ سب کی سلامتی. آپ کی بھی سلام. میں بے حد شکر گزار ہوں پاسٹر یعقوب کا, خدا کے خادم کے بھائی نعمان کا اور ان کی ساری کابینہ کا, سارے چرچ کا, جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر خدا ان کی خدمت کو سر انجام دے سکوں. ہاللیلویا. Hallelujah. سب سے پہلے تو میں مختصر صاحب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے اور عرصہ 40 سال سے میں خدا ان کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں. اور خدا کا شکر ہے کہ وہ اپنے نام جلال کے لیے مختلف جگہ پر پاکستان کے تمام ایریاز میں اور اس کے علاوہ UAE میں بھی یہ میرا تیسرا راؤنڈ ہے کہ میں آ رہا ہوں اور مختلف چرچز کے بیچ میں خدا مجھے لے کے گیا یہاں پر اس کے نام کو جلا. آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس سیزن سے گزر رہے ہیں وہ ہے لینٹ سیزن, یعنی کہ روزوں کے ایام جو سے ہیں وہ ہمارے یہاں چل رہے ہیں. تو میرے عزیزو, بہت سارے خادموں نے یہاں پر آ کر روزے کی اہمیت کو اس کو بیان کیا ہوگا اور ضرور آپ نے برکت حاصل کی ہوگی. اور بنیادی طور پہ روزہ کا جو ٹاپک ہے وہ سال میں ایک ہی بار جب یہ لینٹ سیزن آتا ہے اسی وقت ہی اسے بیان کیا جاتا ہے زیادہ تر, اور کچھ چرچز میں تو ہے ریگولر اس کی پریکٹس کی جاتی ہے. میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آج میرے عزیزو ہم جیسا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے بھائی, روزے کی اہمیت, اور اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ دین نصیحت کے بیچ میں جو روزے کا رول ہے وہ کیا ہے, وہ خدا نے کیوں حکم دیا کہ روزہ رکھا جائے, اور روزہ کون رکھ سکتا ہے, کس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھے. یہ نہیں کہ ہر شخص, ایسے تو دنیا کی تمام کنٹریز کے تمام مذاہب جو ان سے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں. لیکن آج ہم نے جس بات پہ ڈسکس کرنی ہے وہ ہے دین نصیحت کے بیچ میں روزے کی کیا اہمیت اور وہ کون رکھ سکتا ہے, کس کو اجازت ہے. اب یہ سوچیں گے کس کو کیا اجازت ہے, کیا سارے مسیحوں کو اس بات کی اجازت ہے؟ بنیادی طور پہ تو یہی بات ہے. لیکن آج کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ خدا کن کو اجازت دیتا ہے کہ وہ میرے حضور میں آ سکے. آج میرے عزیزو ہم دیکھیں گے کہ خدا کے اس خاندان کے بیچ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کون سا خاندان ہے اور کون لوگ ہیں جو خدا کے خاندان میں شامل ہیں. اس لیے کہ خدا کا کلام اس بات کو واضح بیان کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سارے آئے خداوند کہنے والے خدا کی بادشاہ کے ورثی ہر ایک نہیں, صرف وہی جو اس کے معیار پورا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ قوم بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی سے نکل کے خدا سب کو لے کے جانا چاہتا تھا ملک کنعان کے بیچ, سب کو لے کے جانا چاہتا تھا, لیکن کیا سارے چلے؟ بلائے ہوئے تو بہت سارے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. وہ راستہ جو زندگی کو جاتا ہے وہ تنگ ہے. اس تنگ راستے کا چوز اس کو لینے کے لیے وہی جا سکتا ہے جو خدا کے اس
معیار تک کیا ہوتا ہے؟ پورا اسی طرح جیسے ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ کلام کہتا ہے کہ یہودی تو ہیں لیکن سارے نہیں کہلاتے ہیں، اسی طرح مسیحی سارے ہیں کہلاتے ہیں لیکن وہ حقیقی مسیحی نہیں۔ آج ہم انہیں دونوں باتوں کو سیکھیں گے اپنے یہاں پر کہ خدا کے خاندان سے کیا مراد ہے۔ میرے ساتھ نکالیے کہ گنتی کی کتاب اس کا 12 باب اور 7 آیت۔ جی گنتی کی کتاب 12 باب اس کی 7 آیت میں خدا کے کلام میں یہ مرقوم ہے، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ خدا کس کی بات کر رہا ہے؟ اپنے خاندان کی بات کر رہا ہے کہ میرے خاندان میں، لفظ جہاں پر جب خدا نے استعمال کیا کہ میرے خاندان میں، تو خدا تو ساری دنیا کا خدا ہے، وہ کسی ایک قوم، کسی ایک نسل، کسی ایک کا خدا نہیں ہے۔ وہ تو نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنی بارش کو کیا کرتا ہے؟ برساتا ہے۔ تو وہ ساری دنیا کا خدا۔ لیکن بات یہ یاد رکھیں کہ وہ ساری دنیا کا تو خدا ہے لیکن ساری دنیا کا باپ نہیں ہے، اس لیے کہ جو کوئی اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ سب کو برکت دیتا ہے، سب کو اپنی ان برکات سے نوازتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گنہگار کے کھیت میں جو ہے وہ فصل نہیں اگے گی، یا گنہگار کے اوپر خدا کا سورج نہیں چمکے گا، چمکتا ہے کیونکہ وہ ان کا کیا ہے؟ خدا ہے۔ خدا کا مطلب ہے بڑا پالنے والا، وہ پالتا ہے۔ لیکن باپ کہنے کا حق جو سا ہے وہ ساری دنیا کو نہیں، وہ صرف وہی ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کہنے کا حق حاصل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حق حاصل کرتے ہیں۔ جو حق حاصل نہیں کرتے وہ باپ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں بھائی ایسے ہی ہے؟ اس کی مثال ایک بائبل میں ہم دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ وہ کیا مثال ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ غریب لازر اور امیر آدمی، مسلم کیا کہتے ہیں؟ دیکھتے یہ ہیں کہ وہ لازر جو ہے وہ باپ ابراہم کی کہاں ہے؟ گود میں، اور امیر آدمی کہاں پر ہے؟ وہ جہنم میں جل رہا ہے اور اس کی زبان جو سی ہے وہ چپک گئی ہے تالو کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اتنا پیاسا اور جل رہا تھا وہاں پہ۔ کہتا ہے آئے باپ ابراہم، کیا کہتا ہے جی لفظ؟ اب جل رہا ہے، جہنم میں پڑا ہوا ہے اور دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو دور سے اسے باپ ابراہم نظر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے آئے باپ ابراہم، لازر سے کہہ کے ذرا اپنی انگلی کا سرا ڈبو کر میری زبان پر رکھ۔ اب جو گود میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے باپ ابراہم، کیونکہ وہ باپ ابراہم کی گود میں ہے، وہ تو باپ، اس کا تو حقیقی باپ ہے، وہ باپ کہنے کا لائق ہے، وہ باپ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس نے ثابت کیا کہ میں تیرا کیا ہوں، تو بیٹا ہی گود میں ہے نا۔ تو جو جہنم میں پڑا ہوا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے اے باپ، دونوں میں سے پھر وہ باپ کس کا ہو؟ جو گود میں۔ آج بھی بہت ساری دنیا ایسی ہے جو چرچ میں آ کے آخر میں دعائیں مانگی پڑتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ اے ہمارے باپ، لیکن اس میں ثابت کون کرے گا کہ میں حقیقی خدا کا، میں خدا کے خاندان کا؟ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے ایک اور آیت ہے جی، یزیکیل یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ باغی خاندان اس میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جس میں یزیکیل 12 باب اس کی 2 آیت، یزیکیل 12 باب اس کی 2 آیت میں یہاں پر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں
کہ وہاں پر ایک ہمیں باغی خاندان نظر آتا ہے، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اے آدم ذات تو ایک باغی گھرانے کے درمیان میں رہتا ہے. کس گھرانے میں رہتا ہے؟ باغی گھرانے کے بیچ میں تو رہتا ہے. اور ان کے آنکھیں ہیں کہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں. وہ نہیں سنتے کیونکہ وہ باغی خاندان ہے. یہ جو موسیٰ کو خدا کہتا ہے کہ یہ تو میرا خاندان ہے، لیکن انہی میں سے وہ لوگ جو سارے ہے جوش ہی تھے، لیکن خدا ان کو کیا کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ باغی خاندان. اسی طرح خدا کے خاندان کے بیچ میں جو سارے لوگ آگے تھے، ان میں وہ جو خدا کے کلام کے مطابق چلتے تھے وہ اس کا حقیقی خاندان تھا، اور جو خدا کے کلام کے خلاف چلتے تھے وہ باغی خاندان تھا. اور جب بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر کی غلامی سے نکلی تو ان میں جو حقیقی تھے وہی ملک کنعان میں پہنچے، اور جو باغی خاندان تھا وہ سارا کا سارا وہیں پر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اسی سفر میں مر بیٹا، کیونکہ خدا انہیں اپنے خاندان میں شامل کرنے کے لیے پاک کو صاف کر کے لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ہر بات میں بغاوت کی. تب خدا نے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو خدا نے 10 حکم دیے ان میں کہیں روزے کا ذکر نظر آتا ہے. بھائی حکم تھے نا، وہ بھی حکم تھے، لیکن ان کے بیچ میں کہیں حکم نہیں آیا کہ تم کیا کیا کرو، ساتھ روزہ بھی رکھا. یہ باغیانہ رویے کے بعد خدا نے انہیں واپس آنے کا موقع دیا کہ جب تک تم اپنے آپ کو حلیم، فروتن، عاجز اور انکسار اور اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرو گے، اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کرو گے، اس وقت تک تم باغی خاندان بن کے رہتے واپس نہیں آ سکتے. انہیں واپس آنے کے لیے خدا نے پھر ایک ٹربو چارجر دیا. بیسیکلی دین مسیحیت کے بیچ میں روزہ جو ہے یہ ایک دعا ہے، عبادت کا ایک وہ حصہ ہے جو نہایت امپورٹنٹ ہے. عبادت کے حصوں میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ روزے کی دعا ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹربو چارجر ہے دعا کا. آپ کی دعا اگر سلو جا رہی ہے، اگر روزہ رکھ کے کریں گے شروع کر دے گی. جیسے وہ گاڑیوں میں ٹربو چارجر لگا ہوتا ہے، وہ ٹربو چارجر کیا کرتا ہے؟ وہ گاڑی کو فاسٹ کر دیتا ہے. یہ دعا کا ٹربو چارجر ہے، جب لگ جائے تو پھر یہ رکتی نہیں، اسے نہ کوئی روک سکتا ہے. دانیل کی دعا کو روکا تھا نا اس نے، ابلیس نے روکا تھا نا، موکل نے روک کے رکھا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں روزے کا بیچ میں آ جاتا ہے نا عنصر، تو پھر اسے روک کوئی نہیں سکتا، بلکہ خدا کے ارادوں کو روزے کی دعا کون سی ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے. ہاللیلویا، آمین، ہاللیلویا. اور روزہ لفظ کون سا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار کی کتاب کے بیچ میں اس کا کانسیپٹ بیان کیا ہے. لفظ روزہ جو ہے نا، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جا کے اخبار کے بیچ میں اس کے 23 باب اور اس کی 32 آیت کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر روزے کو بنیادی طور پر ڈیفائن کیا گیا. کتنی دیر کا رکھنا چاہیے، کب سے کب تک رکھنا چاہیے، اور اس سے فائدہ. اور جب ہم اس کو پڑھے، چلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. آئیے ذرا اخبار اس کا 23 باب اور اس کی 32 آیت. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا شب ہوگا، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. کیا کرنا؟ اپنی جانوں کو دکھ دینا. روزے کا بنیادی جو کانسیپٹ ہے وہ اپنے آپ کو خالی کر، سرنڈر کر دینا، اور خدا کے حضور میں ٹاٹ اور رات کے ساتھ حلیم اور فروتن بن کر دعا کرنا جو ہے یہ روزے کا بنیادی کانسیپٹ. اور میرے عزیزو، جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کو شام سے دوسری شام تک اپنا کیا کرنا؟ صبر. یہ ہے روزے کی ٹائمنگ کہ شام سے لے کے دوسری شام. یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم 2 گھنٹے کا رکھ لیتے ہیں، ہم 4 گھنٹے کا رکھ لیتے ہیں، ہم صبح سے شام تک کا رکھ لیتے ہیں. لیکن بائبل کہتی ہے کہ یہ ایک شام سے دوسری شام تک
जब अपने जिस्म को दुख देते हैं और खुदा के हजूर में जिस्म के कामों पर गलबा। मेरे लोग बुनियादी तौर पे रोजे की जो डेफिनेशन है वो है क्या? उसमें देखते हैं कि लिखा है वहां पर कि खुदावन के हुजूर में अपनी जान को दुख देना, खुदावन की खुशनुदी को हासिल करना, उसके लिए रूह की तकवीयत के लिए जिस्म और उसकी ख्वाहिशात के खिलाफ इलाने जंग का नाम है रोजा। और जिस्म के काम क्या है? जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शर्त प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाच, इनके खिलाफ इलाने जंग जो है वो है हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए जो तकवीयत हासिल की, टर्बो चार्जर लगाया जब अपने उसको, तो उसने 40 दिन तक क्या किया? क्योंकि उसका मिशन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मिशन था कि सारी दुनिया के, सारे जहान के गुनाह के लिए उसने अपना खून बहाना था। उसने कहा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या करे, ढल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी पूरी हो। और उस रोजे की तकलीफ बाइबल कहती है इस बात के लिए कि वो 40 दिन के बाद रूह से भरा हुआ वहां से वापस अब तैयार था इस बात के लिए खुदावन कि मैं सारे जहान के लिए, उनके गुनाह के लिए अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हुए अपनी जान रखी। हालेलुया। मेरे जो रोजे की कुछ मकासद है, बगैर मकसद के कोई रोजा नहीं है और ना ही उसका कोई फायदा। अगर आप भूखे रह के शाम तक रोजा रख लेते हैं, एक शाम से दूसरी शाम तक, और उसके पीछे कोई मकसद नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं। बाइबल हमें बताती है कि जहां कहीं भी रोजा रखा गया उसके पीछे कोई ना कोई मकसद। आइए हम मकसद के बारे में हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं। हम इसको यूं देखते हैं कि अपने इरादे और मंसूबे और टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए रोजा रखा जाता है। मत्ती की इंजील, खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जो मत्ती रसूल की वारफत लिखी गई, उसका 4वां बाब और 1 से 17 आयत तक, ये उसका पहला है कि टारगेट कंप्लीट करने के लिए रोजा रखा। सेकेंडली, किसी भी आने वाले गजब से बचने के लिए, आने वाले किसी भी गजब से बचने के लिए, कोई भी गजब आ सकती है, कोई मुसीबत आ सकती है, कोई बड़ा दुख आ सकता है, तो उससे बचने के लिए रोजा रखा जाता है। और उसके लिए हम ये देखते हैं कि यूना उसका 3 बाब, यूना किताब उसका 3 बाब और 5 से 9 है, उसमें हम देखते हैं कि आने वाले यूना जब गया नैनवा के बीच में, उसने जाके मुनादी की, तो जब उन लोगों को यह पता चल गया जो पहले बदकार थे, हरामकार थे, ज़िनाकार थे, बुतपरस्त थे, खुदा के खिलाफ थे, उनको जब बताया गया कि तुम्हारे ऊपर एक गज़ब आने वाला है, नबूवत कर दी गई, और उन्होंने इस बात को एडमिट कर लिया कि हाँ ऐसा होने वाला है। उस बादशाह ने ऐलान कर दिया कि सारे लोग क्या रखें? यहां तक लोग नहीं बल्कि जानवर भी क्या कहें? उसने सब लेट जाओ और सब जमीन पर छुप जाओ, टाट पहन लो, सरेंडर कर दो, मान लो अपने गुनाहों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर हमें ये एक मिसाल नजर आती है बाइबल के बीच में कि आने वाले गजब से बचने के लिए क्या रखा जाता है? रोजा। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, अब हम में से किसी को पता है कि आइंदा आने वाले अय्याम के बीच में हम पर कोई मुसीबत आने वाली है? हाँ जी, तो बता सकता है? तो जो अगर हमें नहीं पता तो फिर हमें क्या रखना चाहिए ताकि आने वाले हर गजब से हम क्या कर सकें? यही वजह थी कि ज्यूस जो से थे वो क्या करते थे? हफ्ते में 2 रोजे। ये किसने कहा? जब फरीसी और जो दूसरा वो शख्स था, वो जब दोनों ने आके दुआ की तो खुदा ने क्या कहा? फरीसी क्या कह रहा है कि मैं तो भाई 2 रोजे भी
रखता हूँ, दायकी भी देखता हूँ, सारे काम करता हूँ, है? लेकिन ये महसूल लेने वाला जो इंसान ये क्या करता है? ये तो कुछ भी नहीं करता, इसे तो पता ही नहीं। अब वहाँ पे मुझे पता चलता है कि वो 2 रोजे रखते थे, लेकिन इन रोजों को सरकारी रोजे कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर कर देती है ना, जैसे यहाँ पे रोजे आप रखने जब शुरू होने वाले हैं तो गवर्नमेंट ऑर्डर खबरदार कोई बार बंदा रोटी सारा कुछ बंद, वो किसकी तरफ से ऑर्डर आता है तो दीनी का, लेकिन ऑर्डर किसका है? गवर्नमेंट। वहां भी जो रबी थे और जो काहिन थे वो ऑर्डर कर देते थे कि अच्छा भाई आपने हफ्ते में क्या करने हैं, 2 रोजे। वो सरकारी ऑर्डर था, वो रखने, चाहे कोई मकसद हो या ना हो, उन्हें रखने। और दूसरा होता था प्राइवेट रोजा, जो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक रखना है, अपनी मंशा के मुताबिक रखना है, अपनी जरूरत के मुताबिक रखना है, आने वाले गजब से बचने के लिए रखना है। वो आपकी अपनी मर्जी है कि जो वो रोजा रखेंगे। अब बात यह है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको वो इस बात को जानते थे, समझते थे कि रोजा रखेंगे तो कोई ना कोई बात हमारे लिए बेहतर ही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुनाहों की मुआफी और बहाली के, गुनाहों की मुआफी और बहाली के लिए रोजा रखें। उसमें हम जाके देखेंगे पहली सूरह 3 उसका 21 बाब और 27। जल्दी से कोई निकाले, पहली सूरह 3 21 बाब 27। सर प्लीज पढ़ दीजिए। जब अखियब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट भी में लेटने और दबे पांव चलने लगा। आमीन। अखियब ने जो गुनाह किए थे ना, उसके तहत खुदा ने ऐलान कर दिया और अपने बंदे को कह दिया कि ये शख्स बचने के काबिल नहीं, मैं इसकी सल्तनत को खत्म कर दूंगा और इसके अयाम खत्म हो चुके हैं, अब ये बच नहीं सकता, इससे सजा यही मिलेगी। तो खुदा के खातून ने जाकर, नबी ने जाकर उसे बताया भाई तेरा काम हुआ हो चुका, अब तू बचने का नहीं। और मेरे जीरो उसने जब इस बात को मान लिया कि अपने दोस्त ने कहा ये तो वाकई मुझसे बड़ी गलती होगी। तो यहाँ पे बाइबल हमें बताती है इस बात के लिए कि अखियब ने क्या किया, अपने कपड़े फाड़े। कपड़े फाड़ने से क्या मुराद है? अपने आप को बरना कर कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी पोशाक कुछ नहीं है। क्योंकि बादशाहों के कपड़े कैसे होते हैं भाई? बड़े अच्छे, शानदार कपड़े। लेकिन उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, उसने कहा मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं खुदा तेरे हुजूर में, अपनी सारी शान शौकत को मैं खत्म करके तेरे हुजूर में टाट और राख पहनकर अपने सर पे डाल के मैं तेरे हुजूर में की अजानी करता हूं। तो खुदा अपने बंदे को आगे जाके वो कहता है, अपने नबी को कहता है देखा। और मैं जिसने से पढ़ रहा था ना इस बात को, मैंने कहा इसकी माफी होनी नहीं चाहिए। जाती तौर पे जो मैंने पढ़ा कि उसने कितने गुनाह किया और क्या क्या किया, तो मैं सोचा था कि इसकी तो माफी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। लेकिन खुदा ने जब ये कहा अच्छा बेटा मैं तुझे क्या करता हूं, माफ करता हूं, क्योंकि तूने सरेंडर इस तरीके से किया। यानी बीच किसको लेके आ गया? रोजे। इसका मतलब रोजा जो है इसको अपनाने के बाद की हुई दुआ जो है वो खुदा के फैसलों को भी क्या कर देती है? हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए कि जब कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए तो मायूस नहीं। क्योंकि बाइबल याकूब के खत में क्या कहता है? कहता गुनाह दो तरह का है, एक ऐसा गुनाह जिसकी माफी है और एक ऐसा गुनाह जिसकी माफी नहीं। और मेरी अजीजों, खुदा ने जब इरादा किया इस बात के लिए कि मैं क्या करूंगा, तो मैं बनी इसराइल को तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इन्होंने जो गुनाह किया है, इन्होंने बछड़ा बनाया, मुझे रद्द किया, मुझ खुदा ने जिसने इनको उनके मिस्र की गुलामी से निकाला, इन्होंने इनकार कर दिया। अब मूसा ये नहीं बच सकते। तो खुदा का मूसा जो 40 दिन के रोजे में था और खुदा के और बनी इसराइल को उनके सेंटर में रखा, उसने कहा खुदा माफ कर दी। उसने कहा मूसा ये माफी के लायक लोग नहीं है।
खुदा के बंदा मूसा ने कहा कि खुदा अगर इनको मारना है तो फिर मुझे भी क्या कर दे। ये वही बंदा कह सकता है कि जिसका खुदा के साथ ऐसा ताल्लुक हो, ऐसा रिश्ता हो, जो बीच में खड़ा होकर आके कहे खुदा नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जमीनों आसमान टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज कोई नहीं टाल सकता सिवाय उसके खानदान के लोगों। हालेलुया। आपको पता है कि यहाँ का जो किंग है, अगर आपने कोई सिफारिश करानी है तो उसके किसी खानदान के बंदे को पकड़ ले, क्या हो जाएगा जी? आपकी सिफारिश क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। खानदान के बंदे को पकड़ लो। या फिर क्या कहते हैं, किसी ऑफिस में जाओ तो किसी चपरासी को पकड़ लो, क्योंकि वो बड़ा करीबी होता है, उसका जो ऑनर होता है। लेकिन खानदान के बंदे को, अब क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदा कहता है कि मूसा मेरे खानदान में अमानतदार है, और ऐसा बंदा अगर बीच में आके कह दे कि खुदा माफ कर दे, तो कहता नहीं मूसा ये इस लायक ही नहीं है। अच्छा देखें कैसी अजीब बात है कि खुदा माफ कर, ऐसा नहीं कहा मूसा। तो खुदा का बंदा मूसा कितने फख्र से ये जानता था कि खुदा मेरी बात को कभी भी टालेगा नहीं। तो ठीक है, खुदा ऐसा करके फिर मेरा नाम भी किताब हाजात से कहा, इनके साथ ही मुझे खत्म कर। खुदा ने कहा नहीं भाई, तुझे तो नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि तू मेरे खानदान का। तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने कहा जा मूसा, मैं तेरी खातिर क्या करता हूं, सारी कौम बनी इसराइल को क्या करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर हम एक बात वाज़ेह तौर पे खुदा की मोहब्बत को, उसके रहम को, उसके फजल को, उसके तरस को हम देखते हैं कि खुदा रहीम है, करीम है, कहर करने में धीमा है, शफ़क़त और वफा में गनी खुदा कादिर है। इतना रहीम है कि उसके गुस्सा आया कि मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन अपने एक बंदा के कहने से उसने उन्हें क्या कर दिया। खुदा का बंदा मूसा जो था वो 40-40 दिन उसकी खातिर भूखा भी तो रहता था। हालेलुया, हालेलुया। और यही वो अमर था कि जिसकी वजह से रोजे की अहमियत दीने नसीहत के बीच में इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट। इस बात को छोड़ दे कि किसी ने 40 रख दिए, किसी ने 20, किसी ने 30 को मुकर्रर कर दिया, नहीं। ये तो खुदा का शुक्र है कि हमारे जो मुहक्किकीन हैं, हमारे उलमा हैं, उन्होंने डिसाइड किया इस बात के लिए कि ठीक है 40 रोजे रख दिए चाहिए। हम इन्हें सरकारी रोजे भी कह सकते हैं, ठीक है ये हमें रख दीजिए, लेकिन इनकी मुखालफत नहीं हम कर सकते, ये नहीं कह सकते क्योंकि वो रोजा है। और ये याद रखें कि बाइबल इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हें बहाए, और जो तुम्हारे तबीयत का बायस हो, चाहे गैर कौमों से ही क्यों ना मिले, और रसूल कहता है उसे क्या कर लो, ले। तो रोजा तो बुनियादी तौर पे हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, तो चाहे वो 40 में से हो, तो चाहे एक एक करके हो। जैसे मुख्तलिफ हमारे जो मिशने हैं उनके अपने अपने तरीक़ाकार हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन जो हमारे लिए बरकत का बायस है, जो हमारे लिए तक़वियत का बायस है, जो हमारी रूह को ताज़गी देने का बायस है, उसे हम ले लें। ये मत सोचे कि कौन किस मिशन से ताल्लुक रखता है, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उनमें जो अच्छी चीज़ है वो हमें लेनी। आज रोजे के लिए भी हम ये कहते हैं, और गुनाहों की माफ़ी और फतह के लिए भी कौन सा है, वो दुश्मन फतह के लिए रोजा रखते हैं। जब हम अमालेकियों से शिकस्त खा के वापस जब बनी कौम इसराइल आई, तो जब उन्हें मना किया गया था कि भाई हमला ना करना, मार खाओगे, तो उन्होंने क्या किया, बाइबल कहती है हद गर्मी करके वो चढ़ गए और वहां से मार खा के वापस। फिर उन्होंने आके कहा कि खुदा हम क्या करें, तो खुदा के बंदा मूसा ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन अब एक ही सूरत है फतह पाने के लिए। सादा दुआ काम नहीं करेगी, आम दुआ काम नहीं करेगी, गिरिया जारी करो। गिरिया जारी का मतलब है रोजा रख के खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाओ, तो वो तुम्हें क्या देगा। इसका मतलब इब्लीस पर फतह पाने के लिए जिस दिन रोजा रख के आप दुआ करते हैं,
तो खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर मेरे हम जब भाई लोग से इस बात को जानते हैं कि जब हम कभी किसी वक्त बदरू गिरफ्तार केस के ऊपर जाते हैं दुआ करने के लिए, तो हम सब मिलकर क्या करते हैं भाई? पहले रोजा रखते हैं। ये मेरी जिंदगी के इन 40 साल अयाम के बीच में मैंने तजुर्बा किया है इस बात के लिए कि जब आप रोजा रख के दुआ करने जाते हैं तो बदरू में जो आपके सिर पास जहां से चलाना शुरू कर, क्यों? आपका अंदर खाली हो चुका है और उसे भर चुका है। आप अपने अंदर को खाली करेंगे और पाक रूह उतना आपके अंदर आना शुरू कर देगा कुव्वत के साथ, इसलिए कि खुदा इस बात को, क्योंकि शिकस्ता दिलों के खुदा क्या है? नज़दीक। और जब आप अपने अंदर को तोड़ना शुरू करें, उस रोजा एक वाहिद ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है इसके बीच में कि जब आप रोजे में जाते हैं बहुत ज्यादा हलीम हो जाते हैं, फरोख्तन हो जाते हैं। और खुदा भी ये कहता है कि जो गालिब आए, मुकाशमा में जाके देखते हैं तो वहां क्या कहता है? जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से फल खाऊं। जो गालिब, तो गालिब आना जिस्म की ख्वाहिशों के ऊपर गालिब आना, जैसे मैंने आपको बताया कि रोजे का बुनियादी तौर पे जो डेफिनेशन है कि खुदा की खुशनुदी को हासिल करने के लिए, रूह के काम को बढ़ाने के लिए, ख्वाहिशात के खिलाफ, जिस्म की ख्वाहिशों के खिलाफ ऐलान जंग जो है ना, वो है रोजे का कॉन्सेप्ट। आप ऐलान कर दीजिए अपनी जिस्म की ख्वाहिशों के खिलाफ, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। जब आपने ऐलान कर दिया तो फिर आप जब खुद ही ऐलान कर देते हैं तो उसके खुद बहुत ताबे हो। और इसमें दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरे अजीजों पोशीदा, पोशीदगी में सब कुछ करते हैं। जब आप दुआ करते हैं तो फिर भी कहाँ जाती बाइबल कहती है कि जब तू दुआ करे तो क्या कर? रोजा रखे और दुआ करे तो क्या करे? सर पे तेल डाले और पोशीदगी में जाकर अपने बाप से क्या करे? तब तेरी आवाज आलमे बाला पर क्या की जाएगी? सुनी जाएगी। मेरी अजीजों पोशीदगी में सब कुछ, क्योंकि बाइबल कहती है पोशीदगी में दिया गया हदिया कहर को क्या करता है? डालता है। मैं लॉट ऑफ टाइम इस बात पे कहता हूं कि ये अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान के बीच में मैंने देखा, यहाँ तो शायद दोनों, तो पाकिस्तान के बीच में जो लोग हदिया देने जाते हैं किसी टीवी चैनल पे, तो हाँ जी ये 50,000 रुपया दिया, अब उसने टीवी पे नशर कर दिया जी भाई साहब ने 50,000 रुपया दिया, और पूरे मुल्क में नहीं बल्कि गैर मुल्क में भी उसकी नशर हो जाता है कि भाई आया कि भाई साहब ने 50,000 रुपये दिए। तो वो खातून उसको ये नहीं बता रहा कि पोशीदगी में दिया गया हदिया कहर को ठंडा कर, तो जो दिखा के दिया गया फिर क्या होगा? इसका अपोजिट। फिर खुदा का कहर आएगा, हदिया भी दो तो कहर भी लो। ये बड़ा खतरनाक काम कि हम हदिया भी दे रहे हैं और खुदा के कहर को आवाज भी दे रहे हैं। इसका मतलब खुदा कहता है कि तेरा दाना हाथ दे तो तेरे बाएं हाथ को पता, यदि तुसी दे रहे तो बीवी को पता लगना चाहिए। ऐसा किसी का काम खराब हो जाएगा। वो आपका हाथ नहीं है, वो आपका क्या है? बदन में पसली है, बिल्कुल दिल के नजदीक। और अगर दिल के करीब पसली को ना पता लगा तो फिर पसली नीचे जानी है। अच्छा, तो मेरे चीजों बात यह है कि पोशीदगी में आपने रोजा रखना है तो दूसरे आदमी को नहीं पता चलना के लिए मेरा रोजा है, या आने सकता है भाई मेरा रोजा जी जरा बात। मेरे चीजों ये सब कुछ पोशीदगी, तेल लगा के अच्छी तरह को दबा के किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आपका रोजा है। तो मेरे चीजों मैं लॉट ऑफ टाइम जब जाता था रोजा का, मैंने रखा होता था, तो किसी जगह चले जाना तो उन्होंने कहना कि हाँ जी भाई साहब की लेंगे। मैं कहा भाई मेरा पेट खराब है, कुछ भी नहीं खा। मतलब कि ये है ना, उनको ये बताना भी कौन सा है, ये बात भी कहती है कि ये कौन सा है आपका ताल्लुक खुदा के साथ, और खुदा का ताल्लुक आपके साथ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुनाहों की माफी के लिए, दुश्मन पर फतह पाने के लिए, पहला सैमुएल साहब और उसकी 6 आयत में, और रोजा जो है वो रखा जाता है। ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि रोजा किस किस बात के लिए रखा जाता है। और उसके बाद नए नामे में जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें अमाल की किताब उसके 14 बाब 23 आयत में और 13 बाब 2 आयत में
मखसूसियत नजर आती है कि नए अहदनामा में हमें नजर आता है कि पौलुस और सिलास को जब मखसूस किया जाता है, खिदमत के लिए भेजा जाता है, तो वो रोजे और दुआ के साथ उन्हें भेजते हैं, जाओ भाई आप क्या करो, जाके खिदमत करो। इसका मतलब ये है कि रूहानी ताजगी, तरक्की, कुव्वत, जोर, नशा, अबर, बादल, ताज़ा, रेमा, जब आप रोजा रख के किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो उससे लबरेज होके जाकर खुदावंद की मनादी करते हैं। हालेलुया। इसका मतलब खादम मिलकर किसी को भी भेजें तो रोजा रखकर जब उसके ऊपर दुआ करेंगे तो वो भेड़ आपकी बहुत सारे बच्चे थे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये कॉन्सेप्ट आगे हम ये इस बात को देखते हैं कि रूहानी असर की किताब में जब जाकर देखते हैं वहां जो रोजे का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आस्तर ने कहा जब यहूदियों के ऊपर आफत आ गई, मुसीबत आ गई, दुख आ गई और उनकी नस्ल कशी करने के लिए सब कुछ किया गया, यानी उनके बच्चों को, बीवियों को, नस्ल को तबाह करने के लिए मंसूबा तैयार हो गया। इब्लीस ने ये हरबा इख्तियार किया कि नस्ल को ही खत्म कर। ये एक फेवरेट चीज है यहां पर मेरी, जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूं रात के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। जस्ट आई हैव 5 मिनट्स। तो उसमें हम देखते हैं कि आस्तर ने कहा कि सारी कौम से मेरे लिए रोजा रखो। उसने ये नहीं कहा सारी कौम के लिए रोजा रखो, उसने कहा सारे मिलकर जो है मेरे लिए रोजा रखो और मैं भी रोजा रख के तुम्हारे लिए रोजा रख के बादशाह के दूंगा। यहां पे है देना और लेना दोनों का आपस में। कौम मेरे लिए रोजा रखे, मैं कौम के लिए रोजा रख के बादशाह के सामने हाजिर हो जाऊं। मैं मर गई, तुम मर गई, यानी अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए वो क्या होगी, अपनी कौम के। आज अफसोसनाक बात ये जिसको मैं समझता हूं कि दीन मसीहत और मसीह कौम के लिए अफसोसनाक बात है कि मेरे बेटे बेटियां और मेरे भाई, मेरे अजीज यहाँ पर कमा रहे अपने बच्चों को, पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं, जितने वो मांग रहे हैं वो भेज रहे हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि हमारा बाप, हमारा भाई, हमारी बहन जो है वो इस मुल्क के बीच में कैसा दुख काट रही है, कैसी मुसीबत है। लेकिन जब आप वापस आए तो आपके बच्चे अगर बेरादरी का शिकार हो, हरामकारी, ज़िनाकारी, बदकारी में मुलविस हो गए और बेटे बेटियां गैर कौमों के पास चली गई हों, शराब नोशी में और हर तरह के नशाबाजी में चले गए हों, तो फिर आपके कमाने में कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये तो कमा तो जा रहे हैं, अच्छा भेज रहे हैं, लेकिन नस्ल क्या हो गई, तबाह। मेरे अजीजों, इब्लीस आज दंदनाता करता है कि किसको, क्या होता क्या है जब कोई बंदा किसी की कमजोरी को पकड़ता है, जैसे कोई अगवा करने वाले होते हैं, वो उसको अगवा नहीं करते, उसके बच्चे को ले जाते हैं, वो अपने बच्चे को लेने के लिए सब कुछ तो दे रहे हैं। इब्लीस हमारे क्या करता है, बच्चों को पकड़ लेता है ताकि इसका घराना क्या हो जाए, नस्ल ही खत्म हो जाए। यहां पर इस वक्त आस्तर मलका ने कहा कि इससे पहले हमारी नस्ल को कोई खत्म कर दे, आओ हम मिलकर क्या रखें। क्या आपने कभी अपने बच्चों के लिए सोचा कि मेरी नस्ल, मेरे बच्चे कहीं तबाह ना हो जाए? आज हमें उनको बचाना है। क्या खुदा, मैं तेरे हुजूर में मेरी आज़ादी करता हूँ, मैं सरेंडर होता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ कि मेरी नस्ल को महफूज। हालेलुया, हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखिए, माँ बाप अपने बच्चों को हर रोज सुबह शाम दुआ में याद रखें, उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ करें, उनकी सलामती की दुआ करें और उनको खुदावन के बीच में रहने के लिए उसके लिए दुआ करें कि खुदावन मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बाद में मिले, लेकिन पहले तेरी बादशाही का बादशाह। आमीन, हालेलुया। अपनी मिसाल और अपनी गवाही इसमें देना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले, मैं बुनियादी तौर पे एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फोर्सेस से रिटायर्ड हूँ, और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा इस वक्त मेरे बच्चों को यहाँ लाया और मेरे बच्चे कुछ यूरोप में हैं, तो खुदा उनको सरफराज कर दिया। लेकिन सबसे पहले मैंने एक बात खुदा से की, मैंने कहा खुदा मैं तेरे हुजूर में ये मिन्नत करता हूँ कि मेरे जीते जी मेरे बच्चे तेरी बादशाही के पास बन जाए, बाकी जो कुछ तूने बनाना चाहता है वो बना दे। उसने कहा पहले मेरी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें किस में मिल जाएगी, इनाम में मिल जाएगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं है।
Hallelujah. हमारा खुदावंद हमारे मांगने से पहले जानता है कि मेरे बच्चे किस चीज के मोहताज। आज आप मेरे साथ मिलकर खुदा के हुजूर में कहें कि खुदा मैं आज के बाद जो रोजा रखूंगा मैं अपने बच्चों के लिए रखूंगा ताकि वो बेरादरी का शिकार No. Yes, God. Amen. आमीन। Amen. आइए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हुजूर में हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें फसल दे और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश कर दीजिएगा और कहिए कि खुदावंद मैं आज अपने आप को तेरे हुजूर में सरेंडर करता हूं। हालेलुया। स्वागत का पता ही राशि जानी बहाल कर दे बहाल कर दे बहाल कर दे प्यारे यीशु जी बहाल कर दे माफ कर दे माफ कर दे प्यारे यीशु जी माफ कर दे बहाल कर दे भटक गया था मैं सो गया था दुनिया की भीड़ में खो गया था भटक गया था मैं सो गया था दुनिया की भीड़ में खो गया था आया हूँ फिर से चरणों में तेरे आया हूँ फिर से चरणों में तेरे बहाल कर प्यारे यीशु जी बहाल कर माफ कर प्यारे यीशु जी माफ कर Praise God. हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्रिया जलाल से बड़े खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं तेरे हुजूर में अपने इन बेटे बेटियों को लाता हूं रहम फरमा मेरे वाले खुदा मैं इनके लिए जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती सलामती बरकत बढ़ोतरी ईमान की ताजगी पुख्तगी दलेरी हमेशा की जिंदगी के लिए दुआ करता हूं और खुदावंद अपने हमदर्द भाइयों के लिए जो इस गल्ला की गलाबानी कर रहे हैं पास्टर याकूब के लिए पास्टर नोमान के लिए और इनके घराने के लिए इनके बेटे बेटियों के लिए इनके चर्च की सारी काबीला के लिए तुझसे बरकत और सलामती की दुआ करता हूं और हमें फजल दे कि हम अपने बच्चों की ऐ खुदावंद अपने नस्ल की बका के लिए तेरे हुजूर में दुआ और रोजे के साथ आ सकें और सारा जलाल तुझे यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आमीन। Praise God. Hallelujah.